Hey there, welcome to Grow Med. This channel is a one-stop guide for all the FMG aspirants. So if you're new to Grow Med, subscribe to Grow Med and tap the bell icon. This is the part 4 video of the obstetric revision, and today we will be discussing about some important diseases which are related with the pregnancy, like hypertension in pregnancy, then diabetes mellitus, then gestational trophoblastic diseases. Okay, we have already discussed about labor, then ectopic pregnancy, twin pregnancy, then the hemorrhage, antepartum, postpartum, all these things already in the part 1 to 3 videos. So do watch those videos also to make your concepts more clear. So hypertension in the pregnancy. So hypertension in pregnancy, it is actually classified into some categories. तो हम categories देख लेते हैं पहले. First one is the gestational hypertension. So gestational hypertension means whenever the blood pressure is more than or equal to more than 140 by 90, then we will be calling it as gestational hypertension on more than 2 occasions and more than 20 weeks of period of gestation. 20 weeks of period of gestation, क्योंकि जो ये पीरियड ऑफ जेस्टेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाइपरटेंशन में. बिकॉज इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द 20th वीक देयर विल बी इन्वेशन ऑफ द प्लेसेंटा. मतलब प्लेसेंटा और मायोमेट्रियम के बीच में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रिज काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें से ब्लड एक्सचेंज होगा. ठीक है, तो किसी किसी में ऐसे होता है कि इन सम people there will be problem with this, that the placenta will not be able to invade the myometrium very easily. ठीक है, तो इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है कि मायोमेट्रियम में प्लेसेंटा नहीं बन पा रहा है. ओके, तो ड्यू टू दैट देयर विल बी लेस एक्सचेंज ऑफ द ब्लड, and when there is less exchange of the blood, then the mother will feel that, तो मदर को लगता है कि बेबी को कम ब्लड पहुंच रहा है. ओके, एंड ड्यू टू दैट द मदर विल ट्राई टू सेंड द ब्लड टू द बेबी, जिसकी वजह से यूटेरोप्लेसेंटल जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है, तो मतलब मदर के थ्रू से यूटेराइन आर्टरी में ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, बट स्टिल द प्लेसेंटा में नहीं जाएगा. ठीक है, क्योंकि देयर इज एबनॉर्मल इन्वेशन, तो जिसके वजह से द मदर विल स्टार्ट फीलिंग हाइपरटेंशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. And this condition is considered as quite normal because most of them, जो नली पैरा है उनमें या फिर जो ट्विन प्रेगनेंसी है, जब ब्लड की फ्लो ज़्यादा रहती है तो उनमें ये देखने को मिलता है. एंड इफ़ द ब्लड प्रेशर गोज़ अबाव 150 160, देन ओनली वी विल बी टेकिंग मेजर्स टू फॉर द ट्रीटमेंट. बट इफ़ इट इज़ like 140 से नीचे है ना, then we will not be doing any major treatment for this hypertension, because as the name itself says that it is gestational pregnancy induced. तो प्रेगनेंसी के वजह से वो हाइपरटेंशन हो रहा है. ठीक है, then the other category of this hypertension is called as pre-eclamptic toxemia. and ये कब बोलते हैं हम? Whenever there is hypertension and along with that proteinuria, then we will be calling it as pre-eclamptic toxemia. and another category is the eclampsia, जो कि सीवियर वाला है, क्योंकि इसमें कन्वल्यूशंस देखने को मिलता है, मतलब कि पेशेंट में सीजर्स आने लगते हैं. इट इज़ प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया प्लस सीजर्स. टू मेक इट सिंपलर वी कैन ऑल्सो रिमेंबर इट लाइक hypertension plus proteinuria plus seizures. Okay, so whenever these three things are seen, then that will be called as an eclampsia, and it is a quite serious condition, और इसमें हमको तुरंत ट्रीटमेंट करना पड़ता है. एंड द मेन स्ट्रे ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ MgSO4. तो जब पेशेंट प्री इक्लैम्सिया में भी रहेगा ना, देन ऑल्सो वी विल बी गिविंग प्रोफाइलैक्टिक MgSO4, ताकि पेशेंट इक्लैम्सिया में नहीं जाए. एंड अगर इक्लैम्सिया में चला गया है, देन वी नीड टू गिव द MgSO4. तो MgSO4 वी गिव इट बाय यूजिंग अ रेजिमेन दैट इज कॉल्ड एज द पिचार रेजिमेन, जिसमें हम IV और IM दोनों दे सकते हैं. तो IV इट विल बी 4 ग्राम 4 GM and IM 10 ग्राम. ठीक है, देन
अगेन वी विल बी गिविंग IV 2 ग्राम, ठीक है। तो दिस वन इज द रेजिमेन ऑफ दिस पिटाट रेजिमेन। तो आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू ऑल। इट इज 4 ग्राम, then 10 gram and 2 gram. एंड देन क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड ऑन दिस MgSO4 टॉक्सिसिटी। मतलब कि एक केस दे देंगे डिस्क्राइब करके कि फीमेल है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, फिर एक्लैम्सिया में जा रही है, आपने MgSO4 दे दिया, ठीक है। अब उसके में नी जर्क्स जो है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या फिर ये किस वजह से हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MgSO4 टॉक्सिसिटी की वजह से। एंड these are the signs of the MgSO4 toxicity. तो knee jerks present, that is the deep tendon reflexes. Then respiratory rate will be going more than equal to 14 per minute, and urine output more than equal to 100 ml per 4 hour. अगर ये चीज़ें दिखेंगी ना तो you need to immediately stop the MgSO4, ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी की तरफ जा रही है। Then moving on, acute on chronic hypertension, और एक आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अक्यूट ऑन क्रॉनिक, या फिर आप बस क्रॉनिक हाइपरटेंशन भी याद रख सकते हो, क्योंकि क्रॉनिक हाइपरटेंशन मतलब फीमेल को पहले से ही हाइपरटेंशन है, तो फीमेल पहले से ही प्रेग्नेंट होने से पहले ही हाइपरटेंसिव है, और उसके वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं बेबी में, लाइक IUGR, ओके। बट अगर वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है ना, बस अगर वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो कोई एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ना कि मदर को ना कि बेबी को, ठीक है। बट इफ़ दिस विल बी गोइंग इनटू द एक्लैम्सिया देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। तो ये अक्यूट ऑन क्रॉनिक हाइपरटेंशन, इसको हम हेल्प सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, क्योंकि देयर आर सर्टन फाइंडिंग्स सीन इन दिस। पहले देख लेते हैं, क्रॉनिक हाइपरटेंशन प्लस जेस्टेशनल हाइपरटेंशन दोनों हो जाएगा इस पेशेंट में। मतलब पहले ही पेशेंट हाइपरटेंसिव थी, अब जेस्टेशनल हाइपरटेंसिव भी हो गया, ठीक है। फिर प्लेटलेट्स लेस देन 1 लाख प्लेटलेट्स है ये। देन न्यू ऑनसेट प्रोटीन यूरिया। देन दिस वन इज़ द क्रिएटिनिन लेवल, तो क्रिएटिनिन जो है 1.1 मोर देन 1.1 हो जाएगा। एंड दिस इज़ द लीवर ट्रांस अमाइनेजेस एंड दिस विल गो इनटू 2, मतलब जो इनकी वैल्यू रहेगी वो इंटू 2 हो जाएगी, डबल टाइम में बढ़ जाएंगे लीवर ट्रांस अमाइनेजेस, तो तब हम इसको हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं। So this was about the category of the hypertension. Now the management, तो drug of choice फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड दिस वन इज़ द लैबिटालॉल, ठीक है। तो लैबिटालॉल की डोज भी देख लेना, 100 to 200 mg TID। देन मिथाइल डोपा 250 to 500 mg, एंड एमरजेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है IV लैबिटालॉल 20 mg over 10 minutes, then 20 to 40 mg over 10 minutes and 80 mg in 10 minutes. तो इसको इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, just you need to remember that emergency drug of choice is IV labetalol. This one is a PYQ, ठीक है, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। तो अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रही है ना, तो दे विल बी आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टू द फीमेल, टू द प्रेग्नेंट फीमेल, तो इट विल बी लैबिटालॉल, ठीक है। अगर मिथाइडोपा दिया गया है, दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो एस इनहिबिटर और ARBs ये जो भी है ना, ये हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज करते हैं। So this was a quick review about the hypertension and hypertension in pregnancy. So we have discussed about the important one-liners and also the clinical cases की किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन मूविंग ऑन टू द डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के भी कैटेगरी ऐसे ही है जैसे अभी हमने हाइपरटेंशन में डिस्कस किया। एक तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जेस्टेशनल मीन्स प्रेगनेंसी के वजह से ही पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रही है। एंड व्हेन वी विल कॉल इट एज डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस व्हेन इट occurs at 24 weeks, 24 weeks और 24 weeks से ज़्यादा में ये हो रहा है, then we will be calling it as gestation, because after the 24 weeks the placenta will start releasing HPL, human placental lactogen and estrogen. So this is an
ए नॉर्मर ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि ये ग्लूकोज की तरह काम करेगा, HPL, जिसके वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड शुगर. So screening test we will be doing for this diabetes mellitus, and स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे और ग्लूकोज के लेवल्स चेक करेंगे. इफ़ इट इज़ फास्टिंग देन इट शुड बी लेस देन 92 mg/dl. ठीक है. देन 1 आवर मीन्स लेस देन 180 एंड 2 आवर लेस देन 153. अगर ये इससे ज़्यादा है देन वी विल बी कॉलिंग इट एज जेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus. And there's an important one liner asked from this, that when we will be doing the screening for the GDM, and it is between the 24 to 28 weeks. तो अगर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है ना, देन इट विल नॉट बी कॉजिंग एनी हार्म टू द फीटस एंड नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू द मदर ऑल्सो. बट इफ़ इट इज़ एन ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटिस, ओवर्ट मतलब पहले ही पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस था एंड फिर अगेन जेस्टेशन में फिर से डायबिटिक वो पेशेंट हो गई. ठीक है. देन प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज मेलाइटिस, देन इट इज़ डेंजरस एंड इट कैन कॉज एनॉमलीज. तो ओवर डायबिटीज मेलाइटिस के लिए वी विल बी यूजिंग दिस क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस. द फास्टिंग ब्लड शुगर more than 105 ग्राम पर DL and the HbA1c more than 6.5. ठीक है. तो अब एनोमलीज देख लेते हैं कि क्या एनोमलीज ये कॉज करता है. मोस्ट कॉमन एनोमली इज द कार्डियक एनोमली, एंड कार्डियक में भी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, दिस वन इज द मोर कॉमन. ठीक है. देन मोस्ट स्पेसिफिक इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और सैक्रल एजेनेसिस. तो इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और क्लिनिकल केस क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. मतलब कि फ्रॉम द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस यूजुअली 3-4 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. एक तो ये स्क्रीनिंग का हो गया. ठीक है. देन इसका हो गया जो एनोमलीज कॉज करता है ये ओवर डायबिटीज मेलाइटिस, उसका हो गया. तो क्लिनिकल केस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देयर इज अ फीमेल एंड शी इज़ हैविंग ब्लड शुगर लेवल सो एंड सो. ठीक है. ग्लूकोज लेवल सो एंड नाउ शी इज़ इन दिस वीक 24 या फिर बता देंगे 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड. तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा मोस्ट कॉमन. अगर मोस्ट स्पेसिफिक पूछ रहा है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या फिर अगर इमेज दे दिया सैक्रल एजेनेसिस का और पूछ लिया कि ये कॉम्प्लिकेशन क्यों हुआ, तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हुआ. ठीक है. तो ऐसे पैटर्न हो सकता है क्वेश्चन का जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर. ओके. देन द ड्रग ऑफ चॉइस इट इज़ द इंसुलिन. Then moving on, abortion and the MTP, we have already discussed these things in the previous videos, so watch those videos also. PPH भी हो गया है. जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीजेस. तो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीजेस एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो कंप्राइज करता है मोलार प्रेगनेंसी, देन फिर कोरियो कार्सिनोमा, फिर कंप्लीट मोल, पार्शियल मोल. ठीक है. तो ये सारी कैटेगरीज हो जाती है जेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक डिसीजेस की. एंड रिपीटेडली क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस ऑल्सो. तो मतलब 1 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इसका हर एग्जाम में. तो वी विल नाउ लुक एट द मोलार प्रेगनेंसी. तो मोलार प्रेगनेंसी फिर से क्लासीफाई किया गया है पार्शियल एंड कंप्लीट. सो इफ़ इट इज़ पार्शियल देन देयर विल बी 1 एग एंड 2 स्पर्म्स. तो इसका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा 64XXX. मतलब देर इज़ 1 ओवम बट देर आर 2 स्पर्म्स गोइंग इन टू इट. तो 2 स्पर्म्स चले गए तो इसका क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 64XXX, विच विल बी नॉन वाइएबल. ठीक है. तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता ज़्यादा दिनों तक. सो इट विल बी ओनली वाइएबल टिल 12 to 16 वीक्स, एंड आफ्टर 12 to 16 वीक्स इट विल अबॉर्ट बाई इटसेल्फ. ठीक है. एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ द फीटस. तो फीटस पार्ट्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे. तो मतलब इन द पार्शियल मोल यू कैन सी द प्लेसेंटा एज वेल एज द फीटस. फीटस नहीं, फीटल पार्ट्स. ठीक है. तो फीटल के पार्ट्स आप देख सकते हो इसमें. देन अ कंप्लीट मीन्स द एग, द ओवम इज एम्प्टी एंड देयर इज अ 1 स्पर्म. ठीक है. एक ही स्पर्म है बट ओवम एम्प्टी है, जिसके वजह से स्पर्म विल मल्टीप्लाई इन द ओवम बाय इटसेल्फ. सो इट विल बी लाइक ये एग है, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, दिस इज़ एम्प्टी. तो एक स्पर्म गया अंदर,
जब ये गया देन स्पर्म को लगा कि अरे यार यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, मतलब जिससे मैं फर्टिलाइज करूँ, जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो स्पर्म क्या करता है, खुद ही से मल्टीप्लाई कर लेता है एंड इट विल फॉर्म 46 एक्स। तो ये भी जो है एबनॉर्मल फॉर्म है, तो ये भी वायबल नहीं है, अपने आप ये भी अबॉर्ट हो जाएगा। और डिफरेंस क्या है इसमें कि फीटस एब्सेंट है, फीटस पार्ट्स के नॉट बी सीन इन द कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो बस पैटर्नल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि जो फादर साइड के क्रोमोसोम्स है वही प्रेजेंट रहते हैं कंप्लीट में। तो ये जो कंप्लीट वाला फॉर्म है ना, दिस इज़ अ लिटिल बिट डेंजरस बिकॉज 20% ऑफ दीज पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरियो कार्सिनोमा। कोरियो मीन्स प्लेसेंटा एंड कैंसर तो प्लेसेंटा का कैंसर। तो 20% ऑफ द patients they are at a risk of developing this choriocarcinoma. Then this important image based question asked on this snowstorm appearance. तो snowstorm appearance देखने को मिलता है choriocarcinoma में, and let me show the image of this to you. So here this one image of the snowstorm appearance. So this one is a classical finding seen with this complete mole, hydatiform mole. तो इसको दूसरा नाम भी दिया गया है hydatiform mole, and this one is seen with this फाइंडिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है और मल्टीपल टाइम इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। तो रेडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल बी यूजिंग रेडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, यूएसजी करेंगे, तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फ्रॉम ऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेगी इसकी, तो ब्लीडिंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन, देन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, थायरोटॉक्सिकोसिस बिकॉज जो HCG सिक्रीट हो रहा है इससे, इट विल बी हैविंग सब यूनिट अप्रॉक्सीमेटली विच इज़ इक्वल टू द TSH, ठीक है। तो TSH को मिमिक करने वाला एक यूनिट इसमें होता है जिसके वजह से यू कैन सी दिस थायरोटॉक्सिकोसिस। देन हाइपरेमेसिस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस HCG एंड यूटेरस की जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मतलब size of the uterus, it will be more than the period of gestation. So these were the clinical features associated with this molar pregnancy, the complete mole, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, सक्शन एंड इवैक्यूएशन एंड HCG फॉलोअप। तो इन कंप्लीट वी विल बी डूइंग द फॉलोअप अप टू 9 weeks and in partial up to 7 weeks. So these are some diseases associated with this gestational trophoblastic neoplasia, like the choriocarcinoma. The choriocarcinoma, the marker will be the HCG and treatment chemotherapy. So chemotherapy is considered as the best treatment for this choriocarcinoma as it is effective and choriocarcinoma is बहुत जल्दी ठीक हो जाता है. And if the patient is more than 40 years, then we will be going with the surgery. The question can also be asked that giving a clinical case about the choriocarcinoma, and they will ask which of the following is the best treatment modality. तो best में से then it will be the chemotherapy. तो questions options में they can be describing things like radiotherapy, then surgical removal, then chemotherapy or chemo radiation. तो the best answer chemotherapy. Then the invasive mole means this mole is the molar pregnancy जो है, the mole, it has invaded into the myometrium of the uterus. Then we will be calling it as the invasive mole, and its marker is also the HCG and treatment is the surgical removal. And then the third variety is this placental site trophoblastic tumor. So this one is the full form of this PSTT, placental site trophoblastic tumor, and for this the marker is the HPL, human placental lactogen, and the treatment modality is the surgery. So the prognosis we will be calculating it by using the FIGO score. So just you need to remember that FIGO score is used. फिर FIGO के details में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. Then questions are asked on its stages of this choriocarcinoma. तो स्टेज 1 में it is limited to the uterus. Stage 2 it will be going to the pelvis and to the vagina. तो vagina is the second most common site for the metastasis. Then stage 3 involvement of the lung, which is the most common site of metastasis. So ये भी एक important question है
एंड ऑल्सो अ PYQ। तो क्लिनिकल केस में डिस्क्राइब कर देंगे कोरियोकार्सिनोमा, ब्लीडिंग है, HCG बढ़ा हुआ है, फिर स्नोस्टोम अपीयरेंस दिख रहा है, फिर फीमेल को कफ भी है। तो कफ क्यों होगा अभी पेशेंट को? तो पेशेंट स्टेज 3 में है, जिसकी वजह से उसको कफ होगा क्योंकि उसकी लंग की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, मतलब लंग में मेटास्टेसिस हो गया। ओके, तो इस चीज़ पे ज़रूर से ध्यान रखना कि इफ़ इट इज़ आस्किंग अबाउट द लंग देन यू विल बी मार्किंग इट एज स्टेज 3। फिर लंग के अलावा कोई भी और दूसरी ऑर्गन आएगी देन इट विल बी द डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो सिंपल वन लाइनर भी पूछा गया है इस पे, दैट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ कोरियोकार्सिनोमा इज, तो लंग रहेगा, ठीक है। These were a few important points from the gestational trophoblastic neoplasm which you must remember, the gestational diseases, ठीक है। Then moving on, amniotic fluid. So the pH of this, these are the normal parameters of the amniotic fluid, these all. So pH, it should be alkaline and between 7.4 to 7.6. Straw color and normal is 1000 ml, and it will be maximum at 32 to 34 weeks, but peak level will be at 36 to 38 weeks, that is 1 liter, ठीक है। So these are the normal parameters which you must remember. Then there are two conditions associated with this amniotic fluid, the oligohydramnios and the polygo। तो oligo मतलब कम, मतलब लेस, एंड पॉली मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा पानी हो गया, ठीक है। तो ओलिगोहाइड्रमनियोस का डेफिनेशन है लेस देन 500 ml और लेस देन 5 अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो लेस देन 5 अमनियोटिक फ्लूइड या फिर लेस देन 500 ml होगा तो। देन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस ओलिगोहाइड्रमनियोस इज द रीनल एजेनेसिस, PYQ, ठीक है, आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। तो most common cause of oligohydramnios, renal agenesis, or and other causes are the IUGR, PROM and preeclampsia. तो by looking at these things you can come to an idea, मतलब आप खुद से आइडिया लगा सकते हो कि ओलिगोहाइड्रमनियोस मतलब लेस अमनियोटिक फ्लूइड। तो जो जो कंडीशन में जब जब बेबी की साइज कम होगी ना, देन वी कैन प्रिडिक्ट इट टू बी एन ओलिगोहाइड्रमनियोस। अब रीनल एजेनेसिस में क्या हो रहा है कि रीनल्स ढंग से बन नहीं रहे, तो फ्लूइड की जो मूवमेंट है ना वो अच्छे से होगी नहीं, मतलब हमारा यूरिन तो वहीं से पास होता है ना रीनल से, तो रीनल एजेनेसिस है तो यूरिन पास अच्छे से होगा नहीं, इसके लिए फ्लूइड कम हो जाएगी। देन IUGR में बेबी ही छोटा बच्चा रहेगा, मतलब बेबी की साइज़ ही छोटी रहेगी, तो IUGR में भी कम। देन प्रीक्लैम्सिया एसोसिएटेड विद द IUGR। तो ऐसे में यू कैन आप आइडिया लगा सकते हो कि किस कंडीशंस में ओलिगोहाइड्रमनियोस दिख सकता है, किस में पॉली। अब पॉली मतलब कि जिस कंडीशंस में देयर इज़ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूटेरस, और यूटेरस की साइज कब कब बढ़ती है, व्हेनेवर देयर इज ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर डिओडिनल एट्रीजिया हो सकता है, ईसोफेजियल एट्रीजिया, मतलब कि जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, तो बेबी अपनी अमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता रहता है और वही पास होता है, फिर किडनीज में जाता है, ठीक है। तो ऐसे वो पूरी प्रोसेस है। तब डिओडिनल एट्रीजिया और ईसोफेजियल एट्रीजिया होगा तो बेबी अपना वो अमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो नहीं कर रहा है, तो स्वेलो नहीं कर रहा है तो वो बाहर ही रहेगी, अमनियोटिक फ्लूइड में पाउच में ही रहेगी ना, तो जिसके वजह से पॉलीहाइड्रमनियोस हो जाएगा, मतलब कि अमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। देन क्लेफ्ट पैलेट, देन ट्विन जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस का एक मैंने चीज़ उसमें डिस्कस नहीं किया, तो अभी डिस्कस कर लेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो है ना, बेबी की साइज़ जो है ना वो बढ़ जाती है, तो बेबी मैक्रोसोमिया हो जाएगा, मतलब बेबी की स्कल की साइज़ भी बढ़ जाएगी और बेबी बहुत हेल्दी होगा और वेट भी ज़्यादा होगा बेबी का, ठीक है। तो अगर ये सब ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियस है कि पॉलीहाइड्रोमनियोस भी होगा पेशेंट में। देन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। So these were some conditions associated with this polyhydramnios, ठीक है। तो अभी there is this another important questions asked from asked in the FMG, that Potter's triad. तो these things consist of the Potter's triad: renal agenesis, pulmonary hypoplasia, malformed limbs और flat faces, ठीक है।
देन क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द अमनियोटिक फ्लूइड, कि अमनियोटिक फ्लूइड में किस वीक में कहाँ से आता है, लाइक अर्ली में इट विल बी द स्किन एंड द प्लेसेंटा, ठीक है, तो यहाँ की फ्लूइड्स की वजह से वो अमनियोटिक फ्लूइड बनता है. देन 12 to 14 weeks the major content will be from the lung and the urine, kidneys, urine, and after the 20 weeks तो जो अमनियोटिक फ्लूइड की मेजर कंटेंट है वो यूरिन रहेगी. सो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. Then moving on to the changes in the pregnancy, तो चेंजेस वेरियस ऑर्गन में चेंजेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, और इसके भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में. तो यूट्रस का ऑब्वियस है कि साइज बढ़ जाएगा एंड द वेट इट विल बिकम 1100 ग्राम, ठीक है. देन हाइपरट्रोफी होगी ईस्ट्रोजन की वजह से एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज होगी, ये तो कॉमन सी चीज़ है जो सबको पता होगी. देन ब्रेस्ट में डक्टल ग्रोथ ड्यू टू ईस्ट्रोजन, देन एल्वियोलर सेल, सेबेशियस सेल ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन एंड मिल्क सिक्रीशन ड्यू टू द प्रोलैक्टिन. तो ये भी ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए, तो ये भी सबको पता ही है, ठीक है. देन CVS, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूजुअली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो जो हार्ट है वो हो जाएगी अपवर्ड, आउटवर्ड एंड हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट. देन कार्डियक आउटपुट जो है 5 वीक्स में इट विल बी इंक्रीजिंग बाय 30% एंड पीक्स एट 30 to 34 वीक्स, ठीक है. देन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है एंड हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड मीन ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्रीजिंग इन द प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है. देन S1 loud S1 and loud S3, so these are the changes seen with the CVS and the heart रेट. तो हार्ट रेट नॉर्मल रहता है एट 4 वीक्स, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, तो वो कब नॉर्मल पे पहुंचता है, आफ्टर द डिलीवरी. तो आफ्टर द डिलीवरी द हार्ट रेट विल रीच टू इट्स नॉर्मल एट 4 वीक्स एंड कार्डियक आउटपुट विल रीच टू इट्स नॉर्मल एट 1 hour आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है. तो क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि 10 days, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगी 10 days तक में, ठीक है. देन हीमेटोलॉजी से आरबीसी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, इंक्रीज इन द WBC, इंक्रीज इन द ESR, क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीजेस. तो एक्सेप्ट 11 and 13, दिस वन वाज अ PYQ. तो क्वेश्चन पूछा गया था ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज एक्सेप्ट, तो कोई भी ऑप्शन दी जाएगी 11 और 13 एंड यू नीड टू चूज विच एवर इज डिस्क्राइब्ड इन द ऑप्शंस. देन डिक्रीज इन द albumin. देन मूविंग ऑन टू द रेस्पायरेटरी, तो रेस्पायरेशन में टोटल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑब्वियसली इंक्रीज, इंस्पिरेशन इंक्रीज, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी विल डिक्रीज एंड 3 पैरामीटर्स विल बी रिमेनिंग अनचेंज्ड, the respiratory rate, vital capacity and the total lung capacity, so these 3 will be remaining unchanged. Then urinary kidney size will increase by 1.5 centimeter. Glomerular filtration rate will also be increased and there will be glycosuria and proteinuria seen, ठीक है. देन GIT में कॉन्स्टिपेशन एंड, तो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो है वो भी बढ़ जाएगी उसकी वैल्यू बाय 2 times एंड कॉन्स्टिपेशन, तो दिस वन वाज आल्सो PYQ दैट कॉन्स्टिपेशन अकर्स ड्यू टू विच हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है. देन एंडोक्राइन में पिट्यूटरी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, प्रोलैक्टिन की लेवल्स बढ़ जाएगी, TSH कम हो जाएगी एंड TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन ये बढ़ जाएगी. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस विच अकर इन द प्रेगनेंसी एंड यू नीड टू एक्चुअली मग अप दिस होल थिंग. तो आपको बस बैठ के याद करना है कि ये बढ़ेगा ये कम होगा, ठीक है. देन मूविंग ऑन डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी की हम डायग्नोस कैसे करेंगे, पहले तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से करेंगे विच इज़ अ वेरी ईजी एंड सिंपल टेस्ट. देन एलाइजा से कर सकते हैं हम सीरम HCG देख के. देन रेडियो इम्यून, देन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करके भी कर सकते हैं एंड यूएसजी में हम देखेंगे सैक, तो ये डबल डेसिडुअल सैक, दिस इज़ द नॉर्मल सैक सीन. तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, तो
मान लो ये यूटेरस है और यूएसजी से हम देख रहे हैं, तो यूएसजी में कैसे दिखेगी फाइंडिंग? ऐसे। तो एक सैक के अंदर एक सैक रहेगी और उसके बीच में उसके अंदर बेबी फॉर्म होती रहेगी। सो दिस वन इज़ कंसिडर्ड एज द नॉर्मल थिंग। अगर ये डबल डेसिडुअल सैक नहीं दिखा, मान लो सिंगल सैक दिखा, देन वी विल बी हम गेस कर सकते हैं कि वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी या तो ब्लाइटेड ओवम हो सकती है या तो फिर फीटस की डेथ हो गई है, ठीक है। तो ऐसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन यूएसजी वी विल बी डूइंग ट्रांस वेजाइनल एंड ट्रांस एब्डोमिनल, then MRI and laparoscopy. So these were some important tools which are used for the diagnosis, ठीक है। फिर also questions are asked on this aneuploidy screening. aneuploidy मतलब कोई chromosomal abnormality है या नहीं, वो देखने के लिए we will be doing this टेस्ट, ठीक है। तो मोस्टली ये डाउन सिंड्रोम में किया जाता है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो है वो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉज है। तो जब भी फीमेल की एज मोर देन 35 ईयर्स होगी तो उनमें तो हम करते ही है टू अवॉइड ग्रॉस एनोमलीज, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वी विल बी डूइंग द डबल मार्कर टेस्ट एंड द न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी। तो डबल मार्कर टेस्ट में आ जाता है अपना बीटा HCG एंड PA-PPA। तो बीटा HCG will be increased, this will be decreased, and the nuchal translucency less than 3 mm. देन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर क्वाड्रुपल मार्कर, जिसमें इंक्लूड होता है बीटा HCG, इनहिबिन A, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल 3। तो ये भी मार्कर्स आपको देखने पड़ेंगे कि कौन सा बढ़ा हुआ है कौन सा घटा हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन दिस। देन पेंटा मार्कर भी हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं यूजिंग द ह्यूमन HCG, ठीक है। देन NIPT ये करते हैं हम मोर देन 12 वीक्स में। देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको एनेंसेफेली का हम देख सकते हैं बाय यूजिंग द USG। तो उसमें हमको एक साइन दिखेगी विच इज़ कॉल्ड एज द फ्रॉग साइन। तो एनेंसेफेली मतलब कि एब्सेंस ऑफ द क्रेनियम, जो कि एक टाइप की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बस एनेंसेफेली को पता लगा सकते हैं, ठीक है। देन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर वी कैन कम टू नो अबाउट द डाउन सिंड्रोम स्पाइना बाइफिडा। तो स्पाइना बाइफिडा इज ऑल्सो अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड टू साइंस सीन विद दिस लेमन साइन एंड द बनाना साइन, ठीक है। देन द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में जो मार्कर होता है वो एसिटाइल कोलिन हिस्ट्रेज होता है एंड ऑल्सो अल्फा फीटोप्रोटीन इज इंक्रीज्ड इन इट। Then other markers, other tests used for this chromosomal abnormalities are the chorionic villus sampling. तो हम ये करते हैं 10 to 13 weeks के बीच में. Then amniocentesis 16 to 18 weeks and this choriocentesis more than 18 weeks. तो questions have been asked on these weeks. So they will describe a clinical case and they'll describe that the baby is having some chromosomal abnormalities. So you can see the features by using the ultrasound. But for the confirmation you want to do the chorionic villus sampling. So at what week you can do it? So there will be some described in the options. So from that you need to choose that 10 to 13 weeks. इसके बीच में we will be doing the chorionic villus sampling. And likewise if they want you to ask it for the amniocentesis, then it will be 16 to 18 weeks, ठीक है। So these were some important things related to the diagnosis. Then the things diseases from the which diseases in the pregnancy. So we have almost covered all the important topics by now, the labor, then the diseases, then twin pregnancy, abortion, everything. So do watch all those videos. And I will also be posting another video, revision video on this obstetrics, covering all the miscellaneous points which I couldn't be able to complete here, those points and from which the questions have been asked, those all I will try to cover in that video. Okay, so stay tuned for more amazing videos related to the FMG. Comment below how do you find this video and how it helped you in your preparation, and share this video with your friends. If you're new to GrowMed, subscribe to GrowMed. Thank you so much for watching this video. Bye bye.